Good morning, everyone. I hope I am audible and visible to all of you. Good morning, Anirudh. Very good morning. Okay, so let's start today's sessions. Good morning, everyone. Welcome back to our channel, RostrumLegal. So today we are here on 24th of October 2024 in the class of Legal News Analysis, and today we are going to analyze the judgment of Supreme Court and different high courts. Good morning, Prakriti. Very good morning. Okay, so let's start with the point number first. In the point number first, we are having Supreme Court's judgment, in which the Supreme Court said that industrial alcohol comes within the meaning of intoxicating liquor under the state list of the Indian Constitution, and hence the state can regulate and tax the same. So there is a difference between industrial alcohol and intoxicating liquor. ठीक है ना? So what is industrial alcohol? Industrial alcohol basically it's a pure ethanol which is not suitable for human consumption. ठीक है ना? It's for industrial use. It is raw in nature. ठीक है ना? It is not the finished product. तो बेसिकली जो एक तरीके से मानकर चलिए कच्ची कच्ची बोल लो या फिर आप ये मानिए कि जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना अल्कोहल का ये उसमें है, और जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर होती है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होती है. तो फैक्ट्री में पहले क्या जाती है, रॉ मटेरियल जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म जाता है, उसके बाद जो है वहां पर उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसके बाद ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिकर तैयार की जाती है दैट शुड बी नोन एज इंटॉक्सिकेटिंग लिकर. ठीक है ना? तो इनका बोलना ये है कि साहब द अल्कोहल फॉर द इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड इंटॉक्सिकेटिंग लिकर both are comes under the purview of state list, and the state is having the power to make laws, or they can regulate both types of liquor and also impose taxes on the same. क्लियर है? ये चीज किसने? सुप्रीम कोर्ट ने बोली. अब ये इशू क्यों फंस रहा था? क्योंकि देयर वाज अ कंफ्यूजन बिटवीन द स्टेट लिस्ट एंड द यूनियन लिस्ट कि साहब ये whether the industrial alcohol comes under the purview of state list or not. ठीक है? इन्होंने बोला कि साहब intoxicating liquor, the liquor for human consumption is definitely falls under the category of state list, but what about the industrial alcohol, whether that also fall under the category of state list or not? So for that, Supreme Court gives the confirmation that the state is having the power to deal with both types of alcohol. Clear हो रहा है? They clearly said that the power of the state is not limited to the intoxicating liquors only. So what happened in this case? Let's see. In the case, state of UP versus Lalta Prasad Vesh. So a petition was filed before the Supreme Court by the state government. So in October 2007, the Supreme Court in the state of UP versus Lalta Prasad Vesh noted that in 1990 decision in synthetic and chemical case had ignored a 1956 5-judge bench decision in टीका राम जी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो हुआ क्या यहाँ पर 2007 में भी एक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब यही जो है यही सेम केस चल रहा था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस लालता प्रसाद वैश्य, इसमें क्या नोट किया कि भाई जो 1990 का जो डिसीजन था ना उसमें इस चीज को फॉलो अप नहीं किया गया था. उसमें ये जो पावर है स्टेट की ये नहीं डिस्कस की गई, और उसमें ये चीज बोल दी गई थी कि साहब द इंडस्ट्रियल लिकर कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ सेंट्रल लिस्ट. क्लियर हो रहा है? वहां से कंफ्यूजन बनना शुरू हुआ. द मैटर वाज thus referred to the 9-judge constitutional bench. On December 8, 2010, the state argued that the power to tax industrial alcohol is vital in the post-GST indirect tax regime and to monitor public health. अब यहां पर हुआ क्या? इनका बोलना ये था कि साहब क्योंकि ये this matter बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था. ठीक है ना? That's the only reason why this issue was referred to the 9 judges constitutional bench. ठीक है ना? 9 जजों की संवैधानिक पीठ को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इसको रेफर कर दिया गया. ठीक है ना? अब स्टेट ने क्या आर्गुमेंट प्रेजेंट किए? द स्टेट ऑफ यूपी ने, इनका बोलना यह था कि साहब दैट द पावर टू टैक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज वाइटल इन द पोस्ट जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स regime and to monitor public health. ठीक है ना? बोले साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई दिस कैटेगरी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट लिस्ट. ठीक है ना? So issue was raised before the Supreme Court whether states could regulate industrial alcohol denatured spirit by way of entry 8, which confers power on the state to deal with the intoxicating liquor. तो इन्होंने बोला कि साहब अंडर एंट्री 8
the state has power to deal with the intoxicating liquor. So whether that particular entry also deals with the category of industrial alcohol, which means that the state is having the power to deal with the matter of industrial alcohol or not. So the Supreme Court also noted that entry 52 of the union list empowers the central government to regulate those industries which have been declared by parliament to be of public interest. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट further noted that कि साहब यहाँ पर there's a another entry in the union list also that also deals with same types of thing. So that's the only reason why the things are things are too much confused. Clear हो रहा है? So Supreme Court said that intoxicating liquor under entry 8 cannot be restricted to potable alcohol. तो उन्होंने बोला कि साहब intoxicating जो liquors है वो केवल potable alcohol तक restricted नहीं है, ठीक है ना? It also overruled a 1990 judgment in synthetic chemical limiters versus state of UP. तो इन्होंने बोला कि we need to overrule the judgment given by the Supreme Court in 1990, जहां पर इन्होंने ये चीज बोली थी कि नहीं साहब इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जो है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, मतलब इज नॉट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है ना? तो इसको ओवररूल किया और इन्होंने बोला कि नहीं साहब जो वर्ड यूज इन द स्टेट लिस्ट एंट्री 8 कि साहब द स्टेट इज हैविंग पावर टू डील विद द इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, दिस इज दैट वर्ड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड to the just the potable alcohol. It also includes the industrial alcohol also. So they clearly said that the Supreme Court bench of CJI DY Chandrachud Saab and Justice Rishikesh Roy Saab, Abhay Soka Saab, BB Nagaratra Ma'am, JB Pardiwala Saab, Manoj Mishra Saab, Ujjwal Bhuyan Saab, Satish Chand Sharma Saab and Augustine George Messi Saab ruled that the meaning of intoxicating liquor under entry 8 of the state list is beyond the narrow definition of alcohol beverages or potable alcohol and includes all kind of alcohol which can adversely affect public health. तो इन्होंने बोला कि साहब इंटॉक्सिकेटिंग लिकर में केवल पोर्टेबल लिकर ही नहीं आएगी, वो सारी चीजें आएंगी जो पब्लिक हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है, which also includes the industrial alcohol also. So this is the confirmation given by the Supreme Court 9 judges bench in this particular case. This case is very important. Please make sure कि आपको ये चीज समझ में आए. चलिए आगे बढ़ेंगे. In the point number second, we are having the judgment of Supreme Court of India, in which the Supreme Court said that all states must ensure that orders of rejection are communicated to concerned convicts. So they clearly said that in case of the order, if any petition filed before the like for remission, ठीक है ना, यहाँ पर बात की जा रही है remission की कि भाई after completing the 14 years the prisoner is having the authority to file remission order, ठीक है ना, or also known as early release, ठीक है ना, before the state government, and if state government is going to reject that order then they have to communicate the rejection order to the convicts. अब ये चीज क्यों बोली देखते हैं. In the case in re policy strategy for grant of bail, so basically it's a suo motu cognizance. So a suo motu public interest litigation petition was initiated by Supreme Court on the grant of bail in cases where appeals filed by prisoners against their criminal conviction have remained pending for long. तो इन्होंने बोला कि साहब जहां पर अपील्स जो है ना वो लंबे समय से पेंडिंग रहती है, ठीक है ना, तो ये मैटर उन्होंने उठाया कि साहब when the appeals were already filed against the order of conviction, ठीक है ना, by the prisoners, तो उसमें क्या क्या उनके पास बेनिफिट्स हैं, वो क्या क्या चीजें क्या क्या पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये चीज कहीं ना कहीं डिस्कस की गई. क्या हुआ, the Supreme Court said that all state must ensure that order of rejection are communicated to the concerned convicts. We make it clear that state must ensure that rejection order are communicated within 1 week from date of decision. If rejection order do not contain reasons recorded by the review board must be communicated to convicts. अब इन्होंने क्या बोला है कि साहब कई बार होता क्या है कि after spending 14 years the person basically applied for the remission for the early release, ठीक है ना, and if government is not going to accept their remission, if they are not going to release them, then they have to and they rejected their their application, and then in that case it is the basic responsibility of the state government to supply the reasons behind that rejection order, ठीक है ना. Initially they need to provide the rejection order to the convict that your application or your appeal has been rejected. Further,
along with the reasons why they rejected your application. क्लियर हो रहा है? ये चीज कहीं ना कहीं स्टेट को बोली कि साहब आपको रीजन देने पड़ेंगे, ठीक है ना? विदाउट गिविंग रीजंस यू कैन नॉट रिजेक्ट एनीवन्स एप्लीकेशन फॉर रेमिशन. So Supreme Court added that rejection order must be forwarded to the concerned legal service authority, ठीक है ना, which can thereafter ensure that the convicts are told about their remedy to challenge the said rejection. The remission earlier granted to convicts cannot be automatically cancelled. इन्होंने क्या बोला है कि साहब अपना आप जो रिजेक्शन ऑर्डर है, ठीक है ना, जो रीजन है, that should be communicated to the legal service authority, ठीक है ना, whether it's district legal service authority or the national legal service authority or the state legal service authority. जो भी legal service authority है वो ये चीज इंश्योर करेंगे कि हाँ साहब the reason given by the state government should be communicated to the convicts. And if any convict already given the remission, that should not be cancelled automatically. अभी हमने रिसेंटली एक जजमेंट पढ़ा था जहां पर गुजरात गवर्नमेंट ने while granting remission उन्होंने कंडीशन इंपोज कर दी थी कि साहब for the next 2 years, if the prisoner is not behaving properly, then in that case we are going to cancel your remission. बात समझ आ रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोला था कि सब दिस इज नॉट द प्रोसेस टू डील विद द रेमिशन. यू कैन नॉट इंपोज सच टाइप ऑफ कंडीशन, ठीक है ना, बिकॉज द कंडीशन इज एम्बिगुअस, द कंडीशन इज नॉट क्लियर. तो आप यहां पर इस टाइप की कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते. सेम चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली. बात समझ आ रही है? Supreme Court further said that state must not impose stereotypical conditions while granting remission to convicts. Each condition must be in line with the fact of that particular case. यही चीजें कहीं ना कहीं रेफर करी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप जो है ना, जो एक स्टीरियोटिपिकल एक अजीब सी कंडीशंस जो आप इंपोज कर देते हो, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया लाइक गुजरात गवर्नमेंट का, तो आप इस टाइप की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते कि आप प्रॉपर्ली बिहेव करोगे. प्रॉपर्ली बिहेव करना क्या होता है, समझाइए क्या होता है प्रॉपर्ली बिहेव करना? अब आप बोलोगे कि भाई मानकर चलो कि किसी गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम है उसको नहीं अच्छी लगी, ठीक है ना, तो वो राइट टू प्रोटेस्ट अपना एक्सरसाइज करने चला गया, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि यू आर एक्सरसाइजिंग योर प्रोटेस्ट राइट टू प्रोटेस्ट, या आप यू आर प्रोटेस्टिंग एट दिस पर्टिकुलर लाइक प्लेस, सो वी आर गोइंग टू कैंसिल योर रेमिशन ऑर्डर. तो ऐसे आप धमकियां नहीं दे सकते, ना ही आप इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं. दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड दैट कि साहब द रेमिशन अर्लियर ग्रांटेड टू कॉन्विक्ट्स कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड, ठीक है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ईच कंडीशन मस्ट बी इन लाइन विद द फैक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. फर्दर द सुप्रीम कोर्ट एक्टेड दैट copies of the existing policy governing grant of remission shall be made available in each prison of state, and a copy with its English translation shall be uploaded on the website of the government. तो बोले साहब it should be available in the local language as well as English, ठीक है ना. Further, our direction to be issued to jail superintendents to furnish the copies to convict who are eligible. We also direct that whenever there are modifications in policy, it is updated in line. तो उन्होंने बोला कि साहब अगर कोई भी मॉडिफिकेशंस आते हैं इन पॉलिसीज में तो इनको जो है अपडेट किया जाएगा तुरंत के तुरंत. तो ये कहीं ना कहीं ये जो ग्रांट ऑफ बेल को लेकर बात की जा रही है, रेमिशन को लेकर बात की जा रही है, इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीरियसनेस शो करते हुए सुओ मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इनिशिएट किया और इस मैटर को जो है ना जो है डिसाइड किया. फर्दर, so we are done with the point number 2, जहां पर हमने ये चीज समझी कि भाई in the matter related to the grant of bail, in the matter related to the remission orders, it is the basic responsibility of the state, all state governments, that they have to provide the reasons for the rejection of like remission, ठीक है ना, and in case they granted the remission, it cannot be cancelled on the will of the state government without giving the reasons. So this is the point number 2. I hope this point is clear. वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा. आगे बढ़ेंगे. इन द पॉइंट नंबर 3 वी आर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट रिलेटेड टू द स्त्री धन, ठीक है ना. तो भाई स्त्री धन क्या होता है? जो स्त्री को शादी के बाद जो चीजें दी जाती हैं, जो बेसिक चीजें उनकी होती हैं, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज स्त्री धन. उनका जो मंगलसूत्र है, उनकी जो बिछिया है, उनकी जो पायलें हैं, उनका जो बाजूबंद है, उनकी जो बेंदी है, दैट शुड बी कंसीडर, उनके जो झुमके हैं, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज हर स्त्री धन, ठीक है ना. अब केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि प्लेजिंग अ वाइफ्स गोल्ड ऑर्नामेंट विदाउट हर कंसेंट कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. व्हाट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? डिफाइंड अंडर सेक्शन 406 ऑफ द आईपीसी. अब ये क्या बोल रहा है कि भाई मानकर चलो कि मैंने अपना कोई भी सामान भरोसे पर आपके पास छोड़ा हुआ है और आपने उसको बेच दिया या आपने उसको कहीं इधर उधर कर दिया, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना. सो देयर मस्ट बी अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू पर्सन, देन ओनली दिस प्रोविजन कैन बी इन्वोक्ड.
मानकर चलिए कि मैं आपको नहीं जानता हूं, मेरा आपका जो है मिलना जुलना नहीं है, then in that case criminal breach of trust cannot be invoked. But in case of husband and wife relationship, there is a relation of trust. ठीक है ना? अगर आप अपनी वाइफ के जो ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, उनको गिरवी रख देते हो, प्लेज कर देते हो, then in that case it should be considered as the criminal breach of trust. बिना उनकी परमिशन लिए तो वाइफ ये बोल सकती है, सर बिना हमसे पूछे इन्होंने मेरे जो जेवर थे उनको क्या कर दिया, गिरवी रख दिया। बात समझ आ रही है? अब देखेंगे पूरा केस है क्या। इन द केस Surendra Kumar versus State of Kerala, a criminal revision petition was filed by the accused before the High Court against the order of conviction by the lower court. एक criminal revision petition फाइल किया जाता है before the High Court against the order of the lower court. Lower court ने इनको conviction दे दिया under section 406, ठीक है ना, for criminal breach of trust. ये कहां पहुंच गया? A complaint filed by Surendra Kumar's estranged wife, referred to as prosecution witness number 1, who alleged that her husband misused 50 sovereigns of gold ornaments given to her by her mother at the time of their marriage in 2009. तो इनका बोलना ये था कि शादी के टाइम पर इनको लगभग 50 जो है सोने के आइटम्स, ठीक है ना, दिए गए थे। किसने? इनकी माँ ने दिए थे, इसकी लड़की की माँ ने दिए थे शादी के टाइम पर, ठीक है ना। तो लड़की की माँ जो शादी के टाइम पर दिए, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज स्त्रीधन, ठीक है ना। अब हुआ क्या? तो इनका बोलना ये था कि साहब इनके हस्बैंड ने क्या करा क्या? The complainant further alleged that the Surendra Kumar had promised to keep the gold safely in a bank locker. इन्होंने बोला कि साहब it is not safe to keep the gold in like in house or in the almirah in the house. So let me take your gold to the bank locker, वहां पर वो सेफ रहेंगे, ठीक है ना। अब ये इन्होंने इनको पट्टी पढ़ाई। अब क्या हुआ? However, the contrary to this commitment, he allegedly placed the gold at Muthoot Fincorp without informing the complainant, thereby violating the trust. बजाय लॉकर में रखने के ये कहां पहुंच गए? मुथूट फिनकॉर्प के पास, ठीक है ना। बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो डील करती है, आपको गोल्ड लोन देती है। आप गोल्ड लेकर आइए, वो गोल्ड की क्वालिटी चेक करेंगे, उसकी वर्थ चेक करेंगे, देन ओनली दे प्रोवाइड यू लोन इन कैश, ठीक है ना। अब ये कहां पहुंच गया? मुथूट फिनकॉर्प के पास पहुंच गया और इन्होंने गिरवी रख दिया और पैसे को उठा लिए, उधार पैसे उठा लिए, ठीक है ना। अब the accused was charged under section 406 and 465, 468, 471 and 420 of the IPC. अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने अपनी वाइफ को बेवकूफ बनाया विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम हर वाइफ, हिज वाइफ। इन्होंने क्या करा? उसको प्लेज कर दिया, ठीक है ना। वाइफ को बताना चाहिए था, वाइफ ने को तो इन्होंने ये बताया कि बैंक के लॉकर में रखने जा रहे हैं और इन्होंने इसको प्लेज कर दिया था। क्लियर है? अब हुआ क्या कि भैया इनके ऊपर जब ये बात निकल कर आई, जब कंप्लेंट फाइल करी गई बाय द वाइफ अगेंस्ट मिस्टर सुरेंद्र कुमार, तो इनके अगेंस्ट में कई सारे प्रोविजन जो है वो इन्वोक कर दिए गए, जैसे सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 465 which is basically the forgery, 471 using forged document as genuine, and section 420 of the IPC which is cheating. Clear है? He was sentenced to 6 months of simple imprisonment under section 406. अब he was charged after taking the cognizance by the magistrate. Magistrate found that there is no evidence available for the other like the offenses, but prosecution is having the sufficient evidence against the accused under section 406. तो इन्होंने इसके अगेंस्ट में सिंपल इंप्रिजनमेंट, 6 महीने का सिंपल इंप्रिजनमेंट इनको दे दिया। The High Court observed that, अब मैटर हाई कोर्ट के पास पहुंचा in revision petition. The High Court observed that entrustment of property, especially स्त्रीधन, imposes the duty of utmost good faith. बोले साहब एक लेडी आपके ऊपर भरोसा कर रही है that you are keeping her gold safe in the bank locker, लेकिन आप कर क्या रहे हो? उसके गोल्ड को लेकर गए और आपने प्लेज कर दिया। दिस इज क्लियर कट केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये बिल्कुल है। सो एनी एक्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन विदाउट कंसेंट, पर्टिकुलरली बाय अ स्पाउस, अमाउंट टू अ ग्रेव वायलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 406. बोले साहब अगर ऐसा कोई पति करता है, देन डेफिनेटली वो बंदा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए चार्ज किया जाएगा। बात समझ आ रही है? फर्दर द केरला हाई कोर्ट व्हाइल रिजेक्टिंग द प्ली, तो प्ली को रिजेक्ट करा, उन्होंने बोला कि नहीं, the prosecution is having the sufficient evidence to prove the case against the accused under section 406 of the IPC. तो इन्होंने क्या बोला कि financial distress does not justify the breach of trust, especially when it involves the industry. बोले आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर एक कंटेंशन रेज किया गया था from the accused side, from the appellant side, इस जो है ना पैसों की समस्या चल रही थी, that's the only reason कि इन्होंने उनके जो गोल्ड को प्लेज किया, बाकी उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था। तो कोर्ट ने क्या बोला कि देखो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, आप पैसों की मजबूरी या तंगी जो है ये कारण नहीं बन सकता, स्पेशली जहां पर बात स्त्री धन की आ रही है। वो आपकी वाइफ का
वाइफ की चीजें हैं, आप उनको बिना लूप में लिए, बिना इन्फॉर्म किए, बिना उनकी कंसेंट के आप ये प्लेज नहीं कर सकते, विच होल्ड नॉट जस्ट इकोनॉमिक बट सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर द वाइफ। इनकी वैल्यू केवल इकोनॉमिकली वैल्यू नहीं है, इनकी सेंटिमेंटल वैल्यू है कि भाई आप अगर दोबारा खरीद भी लाओगे ना तो वो चीजें नहीं होंगी जो उनकी माँ ने दी थी, ठीक है ना, ये भाई हमारा पुश्तैनी है, ये हमारी माँ ने दिया था, तो जो जो सेंटिमेंटल एक जो इमोशंस जुड़े होते हैं ना वो आप वापस नहीं ला पाओगे। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई देयर इज अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना। अगर वो यहां पर ब्रेक होता है तो आप बिल्कुल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए चार्ज किए जाओगे। सो अनऑथराइज्ड प्लेजिंग अमाउंट टू अ क्लियर क्रिमिनल एक्ट एज डिफाइंड अंडर द आईपीसी। बोले साहब अगर आप अनऑथराइज्ड प्लेज करते हो विदाउट इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। So finally, the High Court concluded that the conviction for criminal breach of trust was warranted, and further confirmed the original sentence of 6 months imprisonment and compensation order of 5 lakh rupees. तो इन्होंने अपहेल्ड किया, इन्होंने बोला कि बिल्कुल इन सिचुएशन में जरूरी है कि आपको सजा दी जाए। This is the point number 3. I hope this point is clear. So this point is particularly related to the Istridhar. चलिए आगे बढ़ेंगे। In the point number 4, again we are having Supreme Court's judgment in which the Supreme Court said that where direct evidence is lacking, a conclusive chain of circumstances can suffice to establish guilt. तो इन्होंने क्या बोला कि साहब जहां पर डायरेक्ट if the prosecution is not having the direct evidence, ठीक है ना, then in that case they can also go for the circumstantial evidence, ठीक है ना। बट सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है उसमें आपको चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस प्रूफ करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? वी हैव कवर्ड सो मेनी केसेस लाइक दिस, सो आई होप द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस केस। इन द केस Uma and another versus state, an appeal was filed before the Supreme Court by the accused against the order of conviction of the High Court. तो भैया हाई कोर्ट के ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन के अगेंस्ट में एक अपील फाइल की जाती है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। Raja Lakshmi was married to Ravi, accused number 2, on February 10, 2008. ये बात है 2008 की 10 फरवरी, जब राज लक्ष्मी जो कि डिसीज्ड है, जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है ना, बाद में डेथ हो गई, वो उन्होंने शादी करी रवि नाम के बंदे से जो कि अक्यूज नंबर 2 है। उमा जो है वो अक्यूज नंबर 1 है और जो रवि है वो अक्यूज नंबर 2 है, ठीक है ना। Her death occurred under suspicious circumstances on August 23, 2008, within 6 months. So barely 6 months after her wedding, 6 महीने के अंदर अंदर उनकी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है, संदिग्ध हालातों में उनकी मौत हो जाती है, ठीक है ना। सो इनिशियली रिपोर्टेड एज सुसाइड बाय पेंट इंजेक्शन, एन ऑटोप्सी रिवील्ड साइन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इंडिकेटिंग अ होमिसाइडल डेथ। पहले ये बताया जाता है कि भाई इन्होंने सुसाइड कमिट किया है, पेंट वेंट पी लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इनका जो है गला घोट कर, गला दबाकर मारा गया है। इट्स अ होमिसाइडल डेथ, इट्स नॉट अ सुसाइड और एक्सीडेंट, इट्स अ होमिसाइड, मतलब इनको मारा किया है, किसी और ने मारा है। क्लियर है? ये ऑटोप्सी रिपोर्ट में आ गया, मेडिकल रिपोर्ट में आ गया। अब क्या हुआ? द डिसीज्ड अडॉप्टिव फादर Chandra Kasan, who is the prosecution witness number 1, had reported to the police that Raja Lakshmi faced consistent harassment from her husband and his aunt Uma, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि भाई उनके पति और उनकी आंटी इनको बराबर परेशान कर रहे थे, ठीक है ना। He also alleged that Ravi had an illicit relationship with Uma which fueled tension between him and Raja Lakshmi. इन्होंने बोला कि साहब इनकी जो ये आंटी हैं उमा, इनके साथ इनके नाजायज संबंध थे, इलिसिट रिलेशनशिप थे, यही कारण थे कि इनके झगड़े हुआ करते थे राजा लक्ष्मी के साथ। क्लियर है? ये उनके फादर ने बोली ये बात। Further allegation suggested that the accused poured kerosene and paint into Raj Lakshmi's mouth to disguise the murder as a suicide. तो इन्होंने बोला कि साहब मारने के बाद इनके मुंह में केरोसिन और पेंट डाला गया by her husband, जिससे कि इसको सुसाइड दिखाया जा सके। बट द एक्चुअल फैक्ट इज कि इनको जो है वो मारा गया था by her husband and her aunt, ठीक है ना। अब क्या हुआ? The Supreme Court observed that in cases where direct evidence is lacking, a conclusive chain of circumstances can suffice to establish guilt. तो यहाँ पर कंटेंशन यही रेज किया गया from the defense side कि साहब the prosecution is not having the any concrete evidence, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला? They don't have any direct evidence. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि it doesn't matter if the prosecution is not having the direct evidence, they can also prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt through the circumstantial evidence by proving the chain of circumstances. Clear हो रहा है? So the Supreme Court referred the case of Trimukh Maruti Kirkan versus State of Maharashtra, in which it was stated that when an offense takes place within the privacy of a house, the burden of explaining the incident shift to the accused. बोले साहब अगर घर की चार दीवारी के अंदर कोई भी एक्ट होता है कि भाई आपकी जो है वाइफ की डेथ हो जाती है, किसी की भी डेथ होती है, so in that case it's your responsibility to explain each and everything
ठीक है ना, बिफोर द कोर्ट कि साहब आप बताइए कि वो लेडी मरी कैसे, ठीक है ना, रात में वो बिल्कुल सही थी, शाम आम को जब लोग मिले उनसे, लेकिन अगले सुबह पता चला कि वो उनकी डेथ हो गई। सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में आप एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहे हो। ऑटोप्सी रिपोर्ट ये रिवील कर रही है कि इनकी होमिसाइडल डेथ है, अब आप बोल रहे हो कि नहीं साहब हमने नहीं मारा, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कि इफ द पर्सन इज हैविंग एनी नॉलेज, ठीक है ना, एनी स्पेशल नॉलेज, देन इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दैट थिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर है? तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि in this case the accused failed to offer a satisfactory explanation making the prosecution's case robust। तो इन्होंने बोला कि साहब आपके पास sufficient evidence नहीं है, इसलिए यहां पर केस जो है ना वो सही, ठीक है ना, किसका, प्रोसिक्यूशन का। The Supreme Court while rejecting the plea said that the prosecution had presented a consistent chain of evidence that left no reasonable doubt regarding the culpability of the accused। तो इन्होंने बोला कि साहब कि प्रोसिक्यूशन ने चेन ऑफ एविडेंस एस्टेब्लिश कर दिया है, इसलिए हमें कोई भी यहां पर गुंजाइश नहीं लग रही है कि साहब कि अक्यूज्ड कल्पेबल है या नहीं, वो मतलब क्लियर। सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर 4। मीनवाइल वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ेंगे इन द पॉइंट नंबर 5। In the point number 5, we are having Allahabad High Court's judgment in which the Allahabad High Court said that no court can allow a person to retain a position obtained by fraud। तो इन्होंने बोला कि साहब कोई भी कोर्ट आपको अलाउ नहीं कर सकती अगर आपने किसी भी पोजीशन को फ्रॉड मतलब बेवकूफ बनाकर जो है ऑब्टेन किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 10 साल हो गए काम करते हुए, 20 साल हो गए, लेकिन अगर आपने मानकर चलो कि किसी और के डॉक्यूमेंट लगा दिए, आपने अपना नाम कुछ और बता दिया और आपने कोई किसी पोजीशन को ग्रैब कर लिया, इन दैट केस आप उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, और ना ही कोर्ट इसको अलाउ कर सकता है। ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों बोली, मैटर क्या था देखेंगे। इन द केस District Basic Education Officer and another versus Srimati Punita Singh and 3 others. So an intra-court appeal was filed before the High Court Division Bench against the order of the single judge bench। तो intra-court appeal या latest patent appeal क्या होती है? ये basically single judge bench से जब division bench के पास appeal जाती है in the same High Court, that should be considered as intra-court appeal। Clear है? So the writ petition was filed by Srimati Punita Singh, an assistant teacher whose services were terminated on July 15, 2017। अब ये बात है रिट पिटीशन फाइल किया गया था बिफोर द सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। किसने? पुनीता सिंह ने। और इन क्यों किया था? क्योंकि इनको टर्मिनेट कर दिया गया था सर्विसेज से, इनकी नौकरी से इनको निकाल दिया गया था। ये एक असिस्टेंट टीचर थी, ठीक है ना। जुलाई 15, 2017 को इनको निकाल दिया गया। आफ्टर अपॉइंटमेंट वाज फाउंड टू बी बेस्ड ऑन फॉल्सिफाइड एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स। पता ये चला कि साहब इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं, इनके जो दस्तावेज हैं, वो सब जो है ना वो झूठे हैं और इन्होंने बेवकूफ बनाया है। इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं जिसके बेसिस पर इन्होंने नौकरी ले ली, ठीक है ना। अब क्या हुआ? Appellants contended that Singh's employment, which began on August 7, 2010, was procured using fake documents। अब सिंगल जज बेंच ने क्या करा कि भाई जब इन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया तो बेसिकली सिंगल जज बेंच अलाउड दी पिटीशन और रीइंस्टेटमेंट के ऑर्डर इशू कर दिए। उन्होंने बोला कि नहीं साहब रीइंस्टेट किया जाए इनको, और इनको जो है जबरदस्ती निकाल दिया गया। अब इसके अगेंस्ट में अपील फाइल की गई बिफोर द डिवीजन बेंच बाय द डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। अब अपीलेंट ने बोला क्या? Appellant contended that the Singh's employment, which began on August 7, 2010, was procured using fake documents। बोले साहब इनकी जब बहाली हुई थी, जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, वो फेक डॉक्यूमेंट्स पर हुआ था, ठीक है ना। जो डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रेजेंट किए थे they are totally fake, they were totally fake। So following a complaint, a verification process was initiated with संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो उन्होंने बोला कि साहब एक कंप्लेंट फाइल की जाती है रिगार्डिंग हर डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद एक जो है ना क्या वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। भाई वेरीफाई किए जाते हैं कि वेदर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय दैट लेडी इज जेन्युइन और नॉट। तो आफ्टर कंडक्टिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस व्हाट वी फाउंड व्हिच कंफर्म दैट सिंग्स मार्कशीट वर नॉट जेन्युइन। और पता ही चलता है कि साहब इनकी जो मार्कशीट है ना वो जेन्युइन नहीं है। क्लियर है? इन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट लगाए हुए। So Singh contested this action, arguing that the termination was arbitrary and violated the principle of natural justice, as there was no proper inquiry under the UP Basic Education Staff Rules of 1973। तो इन्होंने क्या बोला कि साहब इनका जो सस्पेंशन है या इनका जो टर्मिनेशन है वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की गई, ठीक है ना, अंडर द यूपी बेसिक एजुकेशन स्टाफ रूल्स। अब भैया आपके डॉक्यूमेंट ही फोर्स निकले तो अब क्या इंक्वायरी की जाएगी, मुझे बताइए आप। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही फेक हैं तो फिर क्या इंक्वायरी की जाएगी, और जरूरत क्या इंक्वायरी की? The High Court noted that Singh had indeed
being given opportunity to prove the authenticity of her documents, but she failed to provide genuine evidence. तो कोर्ट ने बोला कि इनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करिए कि दे आर जेन्युइन, बट आप वो भी प्रूव नहीं कर पाए और आप ये बोलते नहीं कि वो खो गए हैं, हम डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी है, हमने अलाउ कर दिया है, ये कर दिया वो कर, मतलब आप गोल गोल घुमा रही थी कोर्ट को। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट फ्रॉड अनरेवल एवरीथिंग। उन्होंने बोला कि साहब फ्रॉड ने ना आपके जो फ्रॉड है वो खुल चुका, आपका चिट्ठा खुल चुका, अब कुछ नहीं। नो कोर्ट इन दिस लैंड विल अलाउ अ पर्सन टू कीप एन एडवांटेज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। बोले साहब अगर किसी बंदे ने फ्रॉड से कोई भी पोस्ट ली है, कोई भी जॉब ली है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ना ही कोई कोर्ट है उसको अलाउ कर सकता है। सिंगल जज बेंच ने कर दिया, उनको नहीं मे बी क्लैरिटी रही होगी, अदरवाइज आप इस चीज को अलाउ हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो वंस इट इज प्रूव्ड इट विशिएट जजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल ट्रांजैक्शन व्हाटसोएवर। बोले एक बार ये प्रूव हो गया कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो फोर्स डॉक्यूमेंट्स पर है, तो इससे रिलेटेड कोई भी जजमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ट्रांजैक्शन हो, सब जो है कैंसिल हो जाए। बात समझ आ रही है? So the Allahabad High Court, while overturning the single judge judgment, said that a person obtaining a position through deceit cannot claim legal protections typically provided under service rules. तो इन्होंने बोला कि साहब आप अगर फोर्स डॉक्यूमेंट लगाओगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और मिल गई तो उसको कैंसिल कर दिया जाए। Clear हो रहा है? So this is our point number 5. I hope this point is clear. So we are done with today's session, guys. I hope you enjoyed the session. My name is Varun Sir, and today we covered the legal news analysis session for 24th of October 2024. I hope the things are quite clear. If any person is having any doubt, please let me know in the comment section. And meanwhile, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हैं, और अब हम एक नए टाइम पर आपके साथ मिलते हैं 8 AM पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। इन केस कोई भी कैसा भी डाउट बन रहा है, डिस्कस जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।